अच्छा जी, अब हम जो है ना अपना नेक्स्ट फर्दर फ्रंट एंड स्टार्ट करने लगे हैं। रिकॉर्ड मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर लाइट नहीं जाती तो वेल एंड गुड। अच्छा, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, अभी इसके मैंने कॉपी बनाई है और इसमें से नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर जो है ना वो डाल कर दिया, ठीक है। अभी एक तो मैं इसको ज़िप फाइल में पैक करता हूँ और एक मिनट, ज़िप फाइल में पैक करने से पहले ट्री ऑब्लिक कैपिटल F एंड एंटर। ये मेरे पास आ गया मेरा पूरा का पूरा फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर। ये कॉपी पेस्ट हो गया। अच्छा, अब इसको मैं कह देता हूँ आई हैव नॉट included my node module folder and its file because this makes it too large, but I have installed and my I have installed, ठीक है। moreover my project file crafties.zip is also attached for more clarification। इसको भी मैं जिप करता हूँ और ये शेड कर देता हूँ यहाँ पे। कहाँ चला गया? लेट्स स्टार्ट फ्रंट एंड according to the backend and project। अब जो मैंने वर्किंग करनी है वो इसमें नहीं करनी, सारा काम शाम मैंने करना इसमें ही है। इसको फिर मैं डायल करता हूँ। ओके, perfect। I also checked the zip you uploaded and it matches the structure you pasted where we can safely shift our focus to the front end. Welcome to front end development. From this point onward, we will not code like beginners. We will build the front end exactly as a professional company would. Foundation, app layout, routing, authentication, ये वाले 4 स्टेप्स जो हैं ये थोड़े से होंगे। बाकी होम पेज, प्रोडक्ट, कार्ड, चेकआउट, यूज़र डैशबोर्ड, एडमिन डैशबोर्ड, ये वाले थोड़ा यूआई टाइप होंगे। और डिप्लॉयमेंट जो होगी वो तो फिर will complete one module at a time, no jumping around. Phase 1, front-end foundation. This phase is not about making pages, it is about creating the architecture that every page will use. Step 1, target. We'll build the application shell. We'll complete this in order
clean entry file, main.jsx, app.jsx, configure react router, browser router, ग्लोबल प्रोवाइडर में तो थीम और src app.jsx, src not something you should keep. A professional React should have only one application root. Before we write any code, I want to standardize the front-end architecture. I recommend this structure. crafties. और अब हमारा सारा काम फ्रंट-एंड में होगा, तो मैं यहाँ पे VS कोड को ओपन कर लेता हूँ। अभी सोया उठा हूँ तो आवाज़ें आ रही हैं। अच्छा, अभी हमें यहाँ पे क्या चाहिए? src app.jsx provider.jsx, then src में routes and layouts, pages, components, API hooks, ठीक है, स्टोर है, स्टाइल ये भी है, main.jsx ये भी है, ठीक है। देन डिलीट src/app.jsx और app.css, इन दोनों को डिलीट करना है। ओके, दिस कीप अ सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ। Before we build any UI, let's clean the entry point. We will update src में main.jsx, ठीक है, और src ऐप में app.jsx, ये तो ठीक है। src में app.jsx, app.css दोनों डिलीट हो चुके हैं। Give us clean scalable foundation for the rest of the front end. I recommend we follow this architecture. I updated the architecture. अब हमें यहाँ main.jsx कहाँ पर मिलेगा? src में main.jsx, become very simple, paste and save, step to control। src ऐप में provider.jsx, इसमें ये पेस्ट करना है। ऐप में app.jsx, इसमें ये कोड पेस्ट कर दिया। अब src routes में app.route.jsx, इसके यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया। ये क्या हो गया? अच्छा, एडमिन राउट में मैं पेस्ट कर रहा हूँ। राउट्स ऐप route.jsx, यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है? Complete these 4 files.
is defined but never used. We are moving at exactly the pace I wanted. Current foundation is now clean. एक मिनट ज़रा ना, ये वाले यहीं पे जाते हैं. I pasted this code and it gave me an error. RID route, तो ये defined but never used. Your code is option 1. Add a recommended route. If you are about to define routes, use route. ये वाला मैसेज इसको देता हूँ. इसको बताइए क्या कर रहा है, क्या करवा रहा है. Update your file to this. If you want to keep the router empty for now, simply remove this line. नहीं, क्यों करना है, मैं इसको इसके साथ रिप्लेस कर देता हूँ. empty क्यों रखना है. अभी फ्रंट एंड में CMD ओपन करके npm run dev और यहाँ पे http://localhost 5173. प्लीज़ कुछ चवल नहीं मारना. वाइट पेज आया बस, ठीक है फिर तो. अच्छा, अभी नेक्स्ट जो है हम चलते हैं इसकी तरफ. जो मैं बोला जी 3 फाइल्स कुछ क्रिएट करनी है. SRC में हमारे पास लेआउट्स का फोल्डर है. कस्टमर लेआउट डॉट JSX कॉपी. एडमिन लेआउट डॉट JSX और ऑथराइजेशन लेआउट डॉट JSX. अब कस्टमर लेआउट पेस्ट एंड सेव. एडमिन लेआउट पेस्ट एंड सेव. ऑथ लेआउट पेस्ट एंड सेव. डन. ठीक है, नथिंग फैंसी. ओपन routes. Where are the routes? ठीक है, routes app routes dot JSX. Replace it with this token. All paste and save.
बाद एक मतलब फिर कर लेते हैं कस्टमर लेआउट और पेस्ट, ऑथ लेआउट, एडमिन लेआउट, सॉरी 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 सॉरी, अच्छा ऑथ लेआउट एक मरतबा क्लैरिफाई करता हूँ, ये कस्टमर लेआउट है, ठीक है, ये ऑथ लेआउट है और ये एडमिन लेआउट है। डन। अच्छा ऐप routes.jsx, app routes.jsx, all paste and save. Step 4, create these files if they don't already exist. This is the way. अभी हमारे पास क्या जाना है, पेजेस में, उसके बाद फिर होम में हमें ये फाइल बनानी है होम पेज डॉट JSX और लॉगिन में लॉगिन पेज, लॉगिन पेज, रजिस्टर में रजिस्टर पेज एंड नॉट फाउंड पेज में नॉट फाउंड पेज। अब इनका कोड पेस्ट करना है, होम पेज का कोड ये रहा, लॉगिन पेज का ये रहा, रजिस्टर पेज का ये रहा, पेज नॉट फाउंड के लिए ये, अब इसको हम रीस्टार्ट करते हैं और मैं कॉपी करके एज इट इज़ पेस्ट करता हूँ, /login यार ये कुछ भी नहीं दिखा रहा, रजिस्टर कॉपी एनीथिंग रैंडम copy paste, all are showing white page, blank white page। इसको पता होना चाहिए ना कि ये जो very common React issue, a complete blank white page usually means is crashing before anything renders. Let's debug it in one step at a time. Open your browser, F12, click console,
master, F12 console, control R, copy console, ये हो गया कंसोल, cmd output is copy paste एंड अब हमें इसके कुछ फाइल कोड्स देने हैं। main.jsx, app.jsx, ये हमें स्टार्ट में ही मिल जाएंगे आई थिंक सो। हाँ, main.jsx, I copy paste app.jsx, app.jsx is empty, app.jsx का कोड दिया है या मैंने एक मिनट इसने दिया तो था शायद, मैं ही नहीं लिख सका। ठीक है, आर्किटेक्चर कंप्लीट होने के बाद main.jsx, provider.jsx, ऐप पे यार मैं कितना रजिस्टर पेज, ठीक है, login पेज, anything random not found, my app.jsx empty after putting the code, error is fixed, now let's move forward। ये हुई ना बात। Step 1, create layout components, src components, इनको अब हम बंद कर देते हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी तब तक ओपन करते जाएंगे ना, फिर फाइल ढूंढने में मुश्किल होती है। सोर्स कंपोनेंट्स एंड लेआउट्स में हमें एक हेडर फाइल बनानी है, एक फुटर फाइल बनानी है, एक नेविगेशन बार बनाना है, एक अनाउंसमेंट बार बनाना है, एक लेआउट बनाना है। ठीक है, अब इन सब का कोड यहाँ लिखा हुआ है। अनाउंसमेंट बार डॉट JSX हमारे पास ही है। नेक्स्ट हमारे पास नैप बार, हेडर डॉट JSX, फुटर डॉट JSX, layout.jsx। now replace it with this, हमें जाना है src routes में, app route.jsx, make sure these pages exist। oh shit, इसमें कोई मसला है। इसमें
इसमें हम फिर वैसे ढूंढ लेते हैं ना, राउट, ठीक है, इंपोर्ट लेआउट ये नहीं है, यहाँ पे हम इसको ऐड कर लेते हैं, कॉपी, हमने लेआउट इंपोर्ट किया। अब एक्सपोर्ट करते हैं हम इसको, यहाँ इसको ये देता हूँ, when I update my app routes.jsx file from this to this, it shows me error. इसको भी ये सेव रखते हैं। रजिस्टर पेज आ रहा है, प्लीज पेस्ट दिस एंड दैट layout.jsx all copy, ये कंपोनेंट लेआउट, लेआउट्स, लेआउट, हाँ ठीक है माय मिस्टेक, layout.jsx एंड नेक्स्ट main.jsx, ये हमारा कहाँ पे है, src फोल्डर में सीधा नहीं है हमारे पास, यहाँ नीचे में ये नज़र आ गया। लेआउट और मेन ये दोनों इसको दे दिया है हमने। लेट्स सी क्या खिचड़ी पकाता है। ऐप routes.jsx, यहाँ हमारे पास राउट्स का फोल्डर होना चाहिए, ये रहा यहाँ पे ऐप routes.jsx, ये तो बल्कि इसको मैंने दिया है। Update app route.jsx like this, ठीक है। फाइनली हमारे पास यहाँ पे ये भी आ चुका है, यहाँ क्राफ्टीज होम पेज आ गया है, ये इसके प्रोडक्ट्स सारी आ गई हैं, अभी इसका पेज है नहीं, लॉगिन पेज आ गया, रजिस्टर पेज आ गया। अब सारे पेजेस वन बाय वन बनेंगे और इसका कुछ आउटपुट निकल के आएगा। आई आल्सो एग्री विद ऑप्शन 1 की होम पेज किसी मच better long term convention, whatever. Phase E, build the real front end. We are not going to make static pages. Roadmap, फाउंडेशन जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हीरो बैनर, कैटेगरीज, फीचर, प्रोडक्ट, न्यू अराइवल, बेस्ट सेलर और टेस्टिमोनियल्स, न्यूज़लेटर और फुटर। इनको फुटर बनाया नहीं है क्या? बनाया तो है, चलो इसको देखते हैं फिर बाद में। ऑथेंटिकेशन और ये सारा कुछ, फिर इनका यूआई वगैरह। देयर वन
important thing we should do first. Your frontend already contain folder like डन यार, कर जो करना है. ओपन हमें अब करना है एक नया फोल्डर. इसमें फोल्डर्स और फाइल्स काफ़ी ज़्यादा हैं तो ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग भी लग रहा है मुझे. अच्छा, API में exios.jsx paste and save. API में endpoints open frontend.env. make sure it contains this. Is it running? Yes, it is. Step 4, create the first service. Open src services or product service.js. Copy, paste and enter. Copy, paste and save. स्टेप 5 में हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट सर्विस हमने क्रिएट करनी है कैटेगरी service.js. कॉपी पेस्ट एंटर, कॉपी पेस्ट सेव. इतना आसान काम है वेबसाइट्स बनाना. अच्छा, सर्विस पेस्ट कॉपी पेस्ट सेव. नेक्स्ट हमारे पास अनाउंसमेंट बार आ गया. अनाउंसमेंट बार डन. कुछ उल्टा सीधा तो नहीं हो डाला? नहीं. अच्छा, एक और चीज़ मैं देखना चाह रहा था कि ये पेज रिस्पॉन्सिव नहीं है. चलो, ये तो सल तब भी पता चलेगा जब इसमें प्रॉपर तौर पे चीज़ें ऐड होंगी. build it exactly as a professional home page structure. Inspect में sorry. अच्छा, इसका कहना है कि हमने यहाँ पे क्या बनाया है, हेडर हीरो बैनर. हेडर के बाद बॉडी में हमने हेडर और फुटर ही बना है. यहाँ पे कहीं पे वो नहीं है. We will not build everything at once. Instead we will build reusable. अच्छा, अभी हमने यहाँ पे क्या क्या बनाया है, अनाउंसमेंट सर्विस, बैनर सर्विस. कहाँ पे है बैनर? कहीं नज़र क्यों नहीं आ रहा? मेन में हमारे पास लिव है. यहाँ हमारे पास फुटर आ गया. इससे पहले कहीं पे बैनर होना चाहिए. होम पेज पे ही है ना हम? हाँ है, तो होम पेज पे ही.
चलो देखते हैं यार एंड को। अभी फ़िलहाल कुछ शक्ल सूरत नज़र आना स्टार्ट होगी तो फिर ही कुछ पता चलेगा सही। Create these components. src components home components home। ओके ओके ओके, कंपोनेंट्स ही नहीं बनाए थे तो कैसे कुछ नज़र आता। क्रिएट दीज लेआउट कंपोनेंट्स में अब हमारे पास पहले हमने कंपोनेंट्स में होम का फोल्डर ओपन किया था, कंपोनेंट्स में लेआउट का फोल्डर ओपन करेंगे। मिल जा भाई, ठीक है। header.jsx ये तो ऑलरेडी है। header.jsx navbar footer.jsx ये रहा। सर्च बार नहीं है, ठीक है, ये बनाना पड़ेगा। और मोबाइल मेन्यू, हाँ ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। अभी जो मैं कह रहा था ना उसका रिस्पॉन्सिवनेस वो इसमें आएगी मेरे ख्याल से। क्रिएट यूआई कंपोनेंट्स, एसआरसी कंपोनेंट्स में हमारे पास यूआई का फोल्डर ये रहा। इसमें हमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। button.jsx अब कुछ प्यारा प्यारा नज़र आना शुरू होगा, कुछ शक्ल सूरत नज़र आनी स्टार्ट होएगी। कॉपी पेस्ट प्रोडक्ट कार्ड.jsx हो जा भाई कॉपी। मेरा तो सी वाला बटन ही घिस गया सारा। अब src पेजेस, सोर्स में पेजेस में होम में होम पेज.jsx। अब यहाँ पे इस सारे को इससे रिप्लेस कर देना है। पेस्ट एंड सेव। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ आ रहा है क्या? Do not write any UI yet. Each component should temporarily return something simple. For example, अब यहाँ पे मैंने क्या पेस्ट किया है? हाँ, होम पेज। आफ्टर पेस्टिंग इन होम पेज .jsx, my page shows blank white page। अगर मैं इसको अंडू करता हूँ, सेव करता हूँ और हाँ ठीक है, बस मसला इसी का ही है। Each placeholder component, each of these files should look exactly like this। hero slider
एक मिनट, ये कहाँ पे पड़ी है फाइल? मुझे तो ये भी नहीं पता। कंसोल, कॉपी कंसोल, कंसोल डॉट कंसोल एरर। उसके अलावा अनाउंसमेंट बार, हीरो स्लाइडर, फीचर्ड कैटेगरी, हीरो, ठीक है। अब यहाँ पे SRC कंपोनेंट्स, होम, अनाउंसमेंट बार, हीरो स्लाइडर, फीचर्ड प्रोडक्ट्स, कैटेगरी, ठीक है। फीचर्ड प्रोडक्ट्स, ये तो मेरे ख्याल से सेम ही है। ओपन अनाउंसमेंट बार डॉट JSX, हीरो स्लाइडर, इसने हमें बस क्रिएट करने का बोला था, अगर कुछ पेस्ट तो ही ना करना। दैट एक्सप्लेन्स इट, देयर इज एम्पटी। ओके, अनाउंसमेंट बार में हमें ये पेस्ट करना है, हीरो स्लाइडर में हमें ये पेस्ट करना है, फीचर्ड कैटेगरीज में हमें ये पेस्ट करना है, प्रोडक्ट्स न्यू अराइवल, नेक्स्ट बेस्ट सेलर, ये है ना। ओके, वाई चूज अस, न्यूज़ लेटर, ये आना स्टार्ट हो गया, हीरो स्लाइडर आ गया, शुक्र है कुछ नज़र आना शुरू हुआ। अब न्यूज़ लेटर डॉट JSX, अब यहाँ पे सर्च, इसने हमसे फाइल्स क्रिएट करवाई हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ दिया ही नहीं है। अब UI में बटन लोडर, आल्सो एंड मोबाइल मेन्यू पट्टी। अब इसको हम सबसे एंड पे चले जाते हैं। दिस इज एक्चुअली द मेजर माइलस्टोन is the roadmap want us to follow and phase 1 global UI and build। अच्छा, I will do one thing before writing component your current folder, but what should I recommend this structure? स्ट्रक्चर फिर से चेंज, स्ट्रक्चर चेंज करना मतलब पूरा का पूरा कोड चेंज करना होता है।
इज़ गुड बट फॉर स्केलेबल रिक्वायरमेंट। ये कह रहा है कि कंपोनेंट्स के फोल्डर में लेआउट होम इस तरह देते हैं। यहाँ पे होम का यहाँ पे है कुछ नहीं। each component get its own folder instead of announcement bar में more or ready to update my TRUCTUI as well. कंपोनेंट्स में हमारे पास एक फोल्डर होगा लेआउट का, ठीक है। लेआउट होम यूआई, लेआउट होम यूआई, ठीक है। और ऑथ कार्ड चेकआउट प्रोडक्ट एंड प्रोफाइल डन। अब इसमें फर्दर देखना है हमने। लेआउट में हमारे पास हेडर नैव बार फुटर, हेडर नैव बार FWTER फुटर SEARCHBAR कैपिटल, सर्च बार मोबाइल मेन्यू। और इस तरह कंपोनेंट में लेआउट का जो फोल्डर है उसमें हमारे पास header.jsx, इसको हेडर वाले फोल्डर में रखा, नैव बार को नैव बार में रखा, फुटर को फुटर में रखा, ये रहा। और सर्च बार को सर्च बार में फेंका, मोबाइल मेन्यू को मोबाइल मेन्यू में रखा। ये क्या बात हुई? layout.jsx। अब अनाउंसमेंट बाहर का दर्शन बताया, जिससे पहले बताया था क्या? पहले भी नहीं बोला। हाँ तो सही है ना, फिर हम इसको, ये क्या बात हुई? अच्छा अभी फ़िलहाल होम पेज पे चलते हैं और होम फोल्डर में चलते हैं। अनाउंसमेंट बार, हीरो स्लाइडर, बार हीरो स्लाइडर और URIs कैटेगरीज, प्रोडक्ट्स, न्यू अराइवल्स, बेस्ट सेलर, वाई चूज अस और न्यूज़ लेटर। फर्दर यूआई में अब हम अगर जाएंगे तो हमारे पास बटन, लोडर, लोडर के बाद है
product card category card section title for example don't worry अब इसका मेरा अगर कोने लगा पता था change the file and folder let's start it from CRET for now page is again showing blank white page and now for now till the end we will stick to this don't change it anymore इन वो की वर्ड है ना तो ठीक है फिर ना इस वीडियो को हम फाइनल फ्रंट एंड आर्किटेक्चर फ्रोजन विल प्रोवाइड यूज दिस सोर्स में हमारे पास API है सॉरी API assets components फर्दर components में हमारे पास layout और layout में हमारे पास है navbar header search bar मोबाइल मेन्यू एंड फुटर ठीक है इन दोनों को भी के लिए डल करते हैं ज़रूरत होगी तो और कंपोनेंट्स में ही हमारे पास एक होम फोल्डर है जिसमें हमारे पास है एक मिनट लेआउट में हमारे पास कंपोनेंट में हमारे पास लेआउट होम और UI है कंपोनेंट ठीक है और अभी होम में हमारे पास में है अनाउंसमेंट बार हीरो स्लाइडर फीचर्ड कैटेगरी और फीचर्ड प्रोडक्ट्स नेक्स्ट न्यू अराइवल बेस्ट सेलर न्यू अराइवल वाई चूजर्स एंड न्यूज़लेटर ठीक है एंड फर्दर हमारे पास इसको हम डल करते हैं फिलहाल के लिए ना UI में हमारे पास बटन लोडर प्रोडक्ट कार्ड कैटेगरी कार्ड और सेक्शन टाइटल और हमारे पास जो कंपोनेंट्स फोल्डर है उसमें ये कुछ फोल्डर्स और हैं पेजेस नहीं SRC फोल्डर में पेजेस कहाँ पे गई है रे राउट्स सर्विसेज स्टोर एंड यूटिल्स ठीक है एवरी कंपोनेंट कंटेन zero will be run in the same way as senior React developer would. Instead of jumping around, we will build layer by layer. Phase 1 foundation, I will build these in order. Global CSS and theme, layout, header, footer, routing, homepage. Only after these are finished, we'll start API connecting. And then first goal. By the ending of today, the application should display. Even without APIs, the structure will be complete. New development rule.
from now. No placeholder access, no duplicate file, no changing folder, no rewriting component later. Every component will be reusable, every component will be responsive. ये चीज़ सबसे अच्छी है. अच्छा, every component will eventually connect to the backend. Here is how we will work. I would not dump dozen of files at once. Instead, just a second. Instead, we'll build our one professional component at a time and then have bar search bar footer etc. Show me your updated front-end tree. ठीक है, अब ये कह रहा है कि मुझे एक मरतबा ये दिखा दो फ्रंट एंड ट्री कैसा है आपका. क्या वो वही है? नहीं नहीं, इस तरह से नहीं, यहाँ से दिखाऊंगा. नहीं, इसमें तो बैकएंड भी आ जाएगा नहीं. अच्छा, सबसे पहले मैं इसको करता हूँ कॉपी. यहाँ पे अपने पास में एक न्यू फोल्डर बना के इसमें पेस्ट करके इसमें से नोड मॉड्यूल्स को ख़त्म करूँगा. जस्ट द फ्रंट एंड /src इज इनफ. ठीक है, पर मैं फिर भी इसको सारा ही दे देता हूँ. असल में इसमें कुछ फाइल्स ऐसी हैं जो कॉपी होने में टाइम लेती हैं छोटी छोटी फाइल्स. अदरवाइज़ जो मेन फाइल्स हैं उनकी स्पीड ज़्यादा है, इनकी कॉपिंग स्पीड स्लो है. डिलीटिंग स्पीड भी स्लो है. इसको कर देते हैं बंद फॉर नाउ. अच्छा, ट्री एफ. अभी इसको हमने ना पता कितना कॉपी करना है. इसको हमने करना है कॉपी यहाँ तक. ठीक है, इसको ये पता होगा कि मैंने जो कमांड रन की है फ्रंट एंड से की है और इसमें जो सारी एपीए ये फाइल्स और फोल्डर्स हैं, सारा स्ट्रक्चर इसके पास आ चुका है. अभी हम इसको रिस्पॉन्स दे देते हैं अपना. इसका क्वेश्चन का आंसर जो भी है इनपुट. यस, दिस इज एग्जैक्टली what I wanted to see. First, here's my assessment of your front end. What's good? Right now, you have both UI में delete these files. चलो अच्छा हो गया ये भी. देखें ना, पूरा देने का ये फ़ायदा हुआ है. हाँ, इसको भी के लिए बंद करता हूँ. बैग जाता हूँ तो कहीं का कहीं निकल जाता है ये. फ्रंट एंड में SRC में UI यहाँ पे है. नहीं, कंपोनेंट्स में होगा UI SRC कंपोनेंट UI. ठीक है, यहाँ गए, यहाँ से ये सारी फाइल्स को कर दिया डिलीट. डन. कीप ओनली दीज फोल्डर्स इनसाइड एवरी folder. Delete later these home folder.
Currently you have announcement bar, but it's empty. Every component folder should eventually contain. Same for the file. Yet we'll create them one by one. After that, the structure become frozen. We'll never reorganize. Everything from now until deployment will fit inside this architecture. Now let's define our front-end standard. We'll use React 19, React Router, AXIOS. यार इसकी ना प्रोनाउंसिएशन ही देख लेता हूँ, ये बार बार बोलना है. प्रोनाउंसिएशन एक्सियस. अच्छा, नो बूटस्ट्रैप, नो मटेरियल यूआई, नो टेलविंड, और home page deployment order. Even better news, for example, announcement bar ap/announcement banner, ap categories, product, feature, reliable, bestseller. I recommend you first delete the duplicate UI files listed above. Once that's done, we'll start by building the header component professionally, complete with its styling, responsive, and integration into the layout. Done. I have deleted Crafty's Frontend. Okay. And scrolling header, stay at top. Zara H&M hike. बैकग्राउंड, ये कलर स्कीम जो है इसको हम अगर एक मरतबा देख लें, जेमिनी यहाँ पे प्रो है ना, यहीं से देखता हूँ. ये कलर स्कीम जो बता रहा है ये कैसी है. इस वीडियो में एक प्यारी सी चीज़ जो आपने देखी है वो है, वैसे बाय द वे थीम तो अच्छा है, कितना बुरा नहीं. बस फिर इसी को फाइनल करते हैं. थोड़ा डार्क थीम अच्छा लगता है. थीम आई सॉ was very early. One addition that I want you to make add a dark mode, light mode as well. Excellent. I actually think this is the perfect time to add it, not later, for a premium clothing brand. Crafties. यार तुम्हें क्यों लगता है कि ये मेरा क्लॉथिंग ब्रांड है? The theme system should be built from the beginning instead of being afterward. We'll build light mode, system mode.
लाइट मोड एंड डार्क मोड, कॉपी। अब इसका भी आउटपुट एक मरतबा देख लेते हैं क्या देता है। ओ यहाँ एक मिनट ओके, कुछ दिखाया। नॉट बैड, इन फैक्ट लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। चलो सही है, डन करो फिर। इसका लोगो कहाँ पड़ा हुआ है? लोगो 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 लोगो, यार ये वाला यूज़ होगा, ब्लैक और वाइट दोनों में यूज़ हो जाएगा। I would like to make, I also recommend we stop using plain CSS funnel component and switch to tailwind reason. Sure, and also want you tell one more thing. I have a logo and I want to use this. एक और भी होता है SLV शायद, या इस तरह से कोई और डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं। Start building the UI. Let's organize your branding assets properly. Where should you put your logo? Place it here. इसको हम कर लेते हैं कॉपी, और हमारे पास यहाँ पे आएगा फ्रंट एंड SRC assets, एसेट्स में हमारे पास इमेजेस में यहाँ पे logo.png डन हो गया। if you have multiple versions, logo dark, logo light, logo icon, fav icon .png, हाँ ठीक है, fav icon में भी हम इसी को रखेंगे। fav icon .png logo icon, logo हाइफन आइकन, और लाइट डार्क दोनों में यही रहेगा। बस यूज png
even better SVG if available. If your designer gave you logo.svg, तो इसमें क्या मसला है, इसका भी मैं बता देता हूँ आपको। PNG टू SVG कन्वर्टर, ठीक है। यहाँ पे ये ऊपर सबसे आगे ये अगर फ्री हुआ तो ठीक है, अदरवाइज़ हम नेक्स्ट यूज़ कर लेंगे। ठीक है, इन सब फ़ोटोज़ को मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे अपलोड करता हूँ। अपलोड नहीं हो ज़रा, कोई बात नहीं, हम इसको दूसरे को यूज़ कर लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, हो गया। कन्वर्ट, अपलोडिंग, कन्वर्टिंग एंड डन। एक सेव आइकन भी आ गया और लोगो भी आ गया, ठीक है। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं, अब इनको हम कर सकते हैं हैंडल। ब्लैक एंड गोल्ड दिया, वाइट प्लस गोल्ड दिया है, तो गोल्ड ही। लोगो साइज, और शिट यार, ये तो काम ख़राब हो गया। इसको भी के लिए ज़रा इसके लिए हम ये कर सकते हैं, जेमिनी पे जाके इसको भी डेल कर दो, ठीक है ना। बस एक इसको रख लो, ये एंड पेस्ट। जो मैंने कुछ सेलेक्ट ही नहीं किया, कोई बात नहीं, हम ये कर लेते हैं। डार्क बैकग्राउंड नहीं, बैकग्राउंड में तो फिर हमें रिमूव खुद करना पड़ेगा। अरे यार, न्यू चैट ओपन करो। Convert this image to 4K UHD and the resolution ये किसकी स्पेलिंग किधर गई है? रेजोल्यूशन, ठीक है। सेट अबव अब इसका एक और काम हमने करना है, बैकग्राउंड रिमूवर। फड़ी वाला यूज़ करेंगे भाई, ये वाला सबसे अच्छा है बाय द वे। मोस्टली यूज़ दिस वन। ठीक है, डाउनलोड हो गया। इसको यहाँ पे रखा, इसको बंद किया। ठीक है, इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं, ऐसे ही होगा ना। ठीक है, डाउनलोड लो। इसने इसकी
रेजोल्यूशन फिर से चेंज कर दी है। एक होगा लोगो, एक होगा फिर आइकन। हाँ नहीं 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 नहीं, इसका भी कन्वर्टर चाहिए, png टू svg। अभी लोड हो रहा है, ठीक है। डन, कन्वर्ट। ये एक दिन की ना 10 कर सकता है, बस ये लिमिट है इसकी, और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट डे आप ट्राई कर सकते हैं। तो बस एक ये है कि इसको ज़रा थोड़ा ध्यान से करना है, वो नो लिमिट ख़त्म कर लें, ठीक है। फॉर नाउ लोगो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लोगो फिर आइकन, और क्या था, और भी था कुछ, लोगो आइकन, आइकन placed my logo, we can move forward। अभी तो फिलहाल मैं बैठा हूँ ना, तो मैं जितना जितना करता जा रहा हूँ वो सारा रिकॉर्ड करता जाऊँगा, ठीक है। अभी आपको पता देखा है कि आपने एक छोटा सा फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर चेंज करने से सारा स्टार्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ हमें ओपन करना है फ्रंट एंड का रूट फोल्डर। यहाँ पे हमने इंस्टॉल करना है इन डिपेंडेंसीज़ को, ठीक है, जो कि आई थिंक पहले से इंस्टॉल्ड होंगी, पर फिर भी edit changes sequences and audited it sequence this and that। अच्छा, white config.js इसको ओपन किया और इस सारी को इससे किया रिप्लेस एंड सेव कर दिया। अब src में हमारे पास यहाँ पे है index.css, all paste and save, delete these files, src style, animation, global, responsive, tailwind and variable, delete these files। now edit src में main.jsx, ये रहा, replace the imports, ये रहे सारे ये वाले imports हैं। अच्छा, ये हमारे पास स्टाइल ग्लोबल है, वेरिएबल है, रिस्पॉन्सिव है, एनिमेशन है। इसको हमें करना है index.css से, बाकी सारा हमारा ओके है।
अभी हमें यहाँ पे npm run dev करना है और इसको रन करके देखने के तरीके। यार यही मसला होता है मेरे साथ। ये बहुत डरावना किस्म का ना आया है हमारे पास एरर, जिससे मुझे लिटरली बहुत डर लगता है। मैं इसकी वजह से हर बार करता करता काम छोड़ देता हूँ कि नहीं ये सॉल्व ही नहीं होता, इतना गंदा एरर है। खैर तो करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमने लिंक किया, कॉपी पेस्ट एंड गो। कॉपी when I run npm run dev on my browser, show me this my cmd। नहीं इसको छोड़ो, बस ये काफ़ी है। Good catch. This is exactly what I wanted to build the front end step by step. The error is not related to tailwind. I was just trying to import a file does not exist anymore. Named. Let's create the missing file. Create. क्या करना है हमें? Create src components layout। लेआउट कहाँ पे है? लेआउट में हमें बनानी है layout.jsx नामक फाइल। ऑल पेस्ट, देन हमें इसे ओपन करना है और इसको इसके साथ कर देना है रिप्लेस। आल्सो चेक दीज फाइल्स। कंपोनेंट लेआउट हेडर में हमें जाना है, इसमें ठीक है। फुटर में footer.jsx, okay। after this run again। for now just close this window। frontend cmd npm run dev। अस्तगफिरुल्लाह, इसको हो क्या रहा है? again show something like this। अच्छा, कंपोनेंट्स में हमें जाना है और इसका हमने ट्री दे देना। कॉपी I completely agree। looking at your current structure condition,
यार ये क्या अजीब हरकतें कर रहा है. डिलीट दीज फोल्डर्स अंडर. ये अजीब है. पहले इसने सारा वो चेंज करवाया है. फोल्डर स्ट्रक्चर अच्छा खासा बना पड़ा था. अब वो वापस उस पर रिवर्ट करवा रहा है. But keep your backend as it is. Your backend is now in excellent shape. The front end, however, accumulated consistencies, mixed component organization. Some components are folders, other are file, broken import patches. We will not delete the front end version. We will rebuild it clean. ऐप में ये तो ठीक है. एसेट्स में हमारे पास इमेजेस जहाँ पे हमारे लोगो पड़े हुए हैं. आइकन्स और बैनर्स. ठीक है. अब कंपोनेंट्स के फोल्डर में हमारे पास क्या है. लेआउट होम. लेआउट है, होम है और यूआई है. अब लेआउट में हमें कह रहा है कि हम फाइल्स बना लें. पहले इसने सारे फोल्डर बनवाए हैं, अब अगेन वापस फाइल्स पे आ गया. ये क्या अजीब हरकत है. मजाक समझा हुआ इसने. व्हाट टू डिलीट. कंपोनेंट्स में जाके अनाउंसमेंट बार, बेस्ट सेलर. एसेट्स तक ठीक था. कंपोनेंट्स में लेआउट्स में लेआउट डॉट जेएसएक्स. उसके बाद 1 2 3 4 5 6 होनी चाहिए. ठीक है. कॉपी. कॉपी अगेन. कॉपी once again. Copy, paste. अनाउंसमेंट बार डॉट जेएसएक्स वगैरह वे में जाना है होम. ये हम कंपोनेंट्स में है ना, कंपोनेंट्स में होम. ठीक है. अब यहाँ पे हमें ये फाइल्स क्रिएट करनी है. JSX 1 2 3 4 5 6 7 8. डन. अनाउंसमेंट बार डॉट JSX. हीरो स्लाइडर. फीचर्ड. कैटेगरीज.
New arrivals. Copy, all select, paste. ठीक हो गया। अभी यूआई में चलते हैं। यहाँ पे हमें चाहिए 5 फाइल्स। button.jsx, बटन्स नहीं बटन, फिर पंगा हो जाना था यहाँ पे। कॉपी, ऑल सेलेक्ट, पेस्ट। नेक्स्ट है सेक्शन टाइटल। मैं ये सैटेलाइट कहाँ से आ गई है? नेक्स्ट अब पेजेस में जाते हैं। यहाँ पे कहाँ है पेजेस हमारे पास? एसआरसी में पेजेस, पेजेस ये रहा। यहाँ पे हमारे पास, ओह शिट, यहाँ पे तो बड़े ज़्यादा है। होम पेज, लॉगिन पेज, रजिस्टर पेज, होम पेज, लॉगिन पेज, रजिस्टर पेज, नॉट होम पेज। ठीक है, ये सारे आ गए। यहाँ पे इनकी फाइल्स हैं। अब राउट्स में जाते हैं, और राउट्स में हमारे पास ऐप राउट्स डॉट JSX। ठीक है, फर्दर यहाँ पे सर्विसेज वगैरह सारा कुछ है। और इंडेक्स डॉट CSS में डॉट JSX। then I have updated the structure once again. I don't think it may need it again to change it. Now it will be the final one. अभी हमारा npm चल रहा है, नहीं चल रहा। चला के देखें। तो पंगा नहीं देते। Please paste these 6 files exactly as they currently are. अब सबसे पहले इसको भेजते हैं फाइनल वाला हमारा। भेजना तो है था, पर अभी यहाँ कुछ एक नया पंगा और ये भी पड़ा हुआ है। करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा। कॉपी, इसको जो फाइल कोड्स चाहिए ना वो भी इसके बाद ही देता हूँ मैं। वैसे यहाँ ओपन कर लेते हैं फ्रंट एंड अपने पास में इसको। अच्छा चलो भाई, अभी हो गया तो पहले इसको डायल करता हूँ। यहाँ पे cmd ओपन किया और ट्रे -f, सॉरी हाइफन बोल रहा हूँ, स्लैश, हाँ स्लैश है। कॉपी, फाइनल फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर, एंड यहाँ से हम स्लैश को रिमूव कर देते हैं एंड एंटर।
main.jsx, वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। main.jsx ये रहा, सामने पड़ा था। app.jsx, app.jsx हमारे पास आई थिंक src फोल्डर में नहीं है, नहीं इसी में। अच्छा यहाँ पता है src ऐप में app.jsx। नेक्स्ट src में राउट्स, ये रहे, इसमें ऐप राउट्स डॉट jsx, ऑल कॉपी पेस्ट, ऐप राउट jsx, अब कंपोनेंट्स, में लेआउट में हमारे पास होगा एक लेआउट डॉट jsx नाम से कुछ, ये रहा। लेआउट का L कैपिटल है, अब लेआउट कंपोनेंट लेआउट में हेडर डॉट jsx चाहिए और फुटर डॉट jsx चाहिए। हेडर एंड फुटर, ऑल कॉपी, ओह शिट, हेडर डॉट jsx लिखा गया। फुटर डॉट jsx इसने पकड़ लेना फटाफट, इससे पहले कि ये पकड़े मैं खुद ही इसको ठीक कर लेता हूँ। कंपोनेंट्स लेआउट, मोबाइल मेन्यू में भी है और फुटर में भी है, हैंडल में भी है, नैव बार में भी है। ओए होए 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 होए, ये तो काम खराब है और पता नहीं कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, ठीक है, ये गलती हम पहले ही अपनी मान लेते हैं और इसको बता देते हैं। एक्सीलेंट, ये अच्छा लेआउट में ही है बस कहीं पे। कंपोनेंट लेआउट में 1 2 हेडर ओके हो गया, फुटर ओके हो गया, नैव बार ओके हो गया, सर्च बार ओके हो गया, मोबाइल मेन्यू ओके हो गया। then do this। अब मेन मुद्दे की बात आती है हमारे पास, ठीक है, वो ये कि
delete everything inside and replace it with this. All paste and save. Footer, all paste and save. This one is already correct. Leave it exactly as लेआउट को ऐसे ही छोड़ देना है. फिर भी मैं इसको रिप्लेस करूँगा. होम पेज डॉट JSX ये किधर है? होम पेज डॉट JSX don't import anything, replace it with this. होम पेज डॉट JSX है किधर है भाई? ये भी मैंने इसको दिया था क्या? पेजेस में होगा शायद. होम पेज डॉट JSX. ऑल पेस्ट एंड सेव. लॉगिन पेज ये रहा लॉगिन पेज. रजिस्टर पेज PQ QR ये रहा रजिस्टर. पेज नॉट फाउंड NOP N ये रहा नॉट फाउंड का पेज. सेव. अब components app API assets home layout UI और common. ठीक है. pages. One thing I noticed your both somehow become copies of layout.jsx. That alone is enough to create an infinite component loop like. ठीक है. हाँ ये एक मसला आ रहा था. लूप क्रिएट हुआ था, बार बार एक ही चीज़ गोल गोल घूम रही थी. npm run डन हो गया. ठीक है. तो फिर अब ये वर्किंग स्टार्ट कर चुका है अपनी. इसका सबसे बड़ा जो एरर है वो सॉल्व हो चुका है, जिसकी वजह से मैं हर बार इसको छोड़ देता था. राइट नाउ योर हेडर डॉट कंटेन this is actually the layout code, not the header code. Delete everything inside header.jsx. Replace it later with the real header. For now use this. इस फाइल को इसके साथ रिप्लेस करना है और footer.jsx की सारी फाइल को इससे रिप्लेस करना है. अब कंपोनेंट्स बनाने की बारी आ रही है. क्रिएट दीज फाइल्स इफ दे डोंट ऑलरेडी एग्जिस्ट. पहले दरमियान में था और अब ये यहाँ पे चिपक गया है, यानी कोड वर्क कर रहा है.
इसको अभी के लिए हम बंद कर सकते हैं। जैसे जैसे वर्किंग करते जाएंगे तो हमें हमारी ये सारी पता चलती जाएंगी कि फाइल्स कहाँ कहाँ पड़ी हैं। फॉर नाउ अभी कुछ नया नया है या तो नहीं पता चल रहा, ढूंढनी पड़ती है बहुत ज़्यादा। SRC कंपोनेंट्स में हमारे पास होम, यहाँ पे अनाउंसमेंट बार, ओके, हीरो स्लाइडर, ओके, featured category and products, new arrival bestseller, new arrival bestseller, why choose us or newsletter, here a newsletter, why choose us, okay done. Each one should temporarily contain this example, announcement bar, अनाउंसमेंट बार में ये पेस्ट कर दिया, हीरो स्लाइडर में ये पेस्ट कर दिया, और फीचर्ड में ATEGORIES कैटेगरीज, और यहाँ पे हमारे पास में आ गया फीचर्ड प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट हमारे पास में आ गया है न्यू राइवल्स, बेस्ट सेलर, न्यूज़लेटर, और वाई चूजर्स। ठीक है, रिपीट ऑफ ऑल होम पेज पेज एग्जैक्टली, होम पेज कहाँ पड़ा था मेरा, मैं फिर से भूल गया। पेजेस में, हाँ अभी पेजेस की बारी आ गई, ठीक 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 ठीक। होम पेज, होम पेज को इसके साथ रिप्लेस कर देंगे, डन। अब लॉगिन पेज हमारे पास ये होगा, रजिस्टर पेज ये रहा, नॉट फाउंड पेज, एक्चुअल प्रोडक्शन स्टार्टिंग, यहाँ पे हमारे पास ये सारा कुछ आ गया, ठीक है। इसको भी हम डन कह देते हैं। किसी भी वक्त अब इसकी लिमिट कंप्लीट हो सकती है, तो हम वीडियो को वहीं पे टर्मिनेट करेंगे, ठीक है अभी, या फिर अगर मुझे कोई ज़रूरी काम नहीं आ जाता तब तक ये चलता रहेगा। वन थिंग दैट विल सेव अस वीक्स लेटर, Frontend should never be built using inline style like or use tailwind CSS only. That means no inline style, no CSS module, no bootstrap, tailwind only. हाँ अभी मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूँ, जिसका पता भाई वो तो बताऊँगा ना। ये देखो अभी यहाँ पे ये जो CSS है ना, ये इनलाइन CSS लगी हुई है, तो हम इसको नहीं यूज़ करेंगे, बस इसका इतना मतलब था।
first aid component, we are going to build the header navbar. This is not just a simple navbar, it will include logo, mega navigation, search, category drop down, wish list, and cart, login या profile, dark mode, sticky header, mobile menu, exactly like Zara, H&M, Nike. यहाँ पे अनाउंसमेंट बार आएगा और ये सारा कुछ ठीक है, ये प्लान है. We also connect the backend immediately. The header will fetch, get API categories, and generate the menu automatically. No hard code. Git categories. अभी के लिए हमें इसको बंद कर देते हैं, ज़रूरत नहीं. और ये डिपेंडेंसीज हैं कुछ, इनको हम कर लेते हैं इंस्टॉल. एक्सिस, रिएक्ट आइकन, this and that 20 point और करंट है 22 point. We'll use Lucid Framer motion for clean premium icons, for animation, for state management, for your backend APIs, for all forms. ठीक है, यहाँ से हमारे पास. We'll build the actual header, navbar, your logo, responsiveness, and backend categories, live search, this and that. Done. And here is my CMD output. इसको साथ में ना मैं ये भी दे रहा हूँ. उसके रीज़न क्या है? उसके रीज़न ये है कि अगर यहाँ सपोज़ मुझे देखने में लग रहा है कि ये सब ठीक है, मे भी यहाँ पे कुछ एरर हो, कुछ प्रॉब्लम्स हो, तो वो इसको फिगर आउट कर लेगा खुद ही और मुझे बता भी देगा कि भाई यहाँ पे मसला आ रहा है आपके पास में. Perfect. First, don't worry about those warnings. They are not errors. देखा? The reason you are seeing them is because your node.js version is equal to 22.11, white recommends 22.12, ESLint recommend 22.13. Now before writing any UI, I want to make something very clear because this is going to decide the quality of the entire frontend. I have now completely understood your backend and understand your complete folder structure. I also know every page you created, so from this point onward we are not going to randomly code components. We are going to build the frontend exactly like a professional e-commerce company would. My proposed roadmap, phase 1 foundation etc phase. हाँ, अभी ना मैं इसको सेव करना बेहतर समझूंगा अपने पास में. जस्ट सेकेंड, मैं यहाँ पे जो इसको फिर मैं बंद करता हूँ, डिलीट करता हूँ, हो रहा बस ठीक है. मतलब मैंने इसको यहाँ पे नहीं ओपन किया हुआ ना. हाँ ठीक है. मैं करने क्या लगा था, यहाँ पे अपने पास में वर्ड फाइल बनाऊँगा, फ्रंटेंड DEVELOPMENT प्लान, या इसको कह लो रोड मैप. ठीक है. फेज़ 1 से लेके फेज़ 4 तक ये होगा हमारे पास में प्लान. और
ताकि हमें एक ओवरव्यू रहे कि हम करने क्या जा रहे हैं, आगे क्या करना था। समटाइम ये डिस्ट्रैक्ट, इवन हर बार ये डिस्ट्रैक्ट हो जाते, तो हमें तो पता होगा ना कि हम क्या कर रहे हैं, तो इसको गाइड कर सकेंगे। वाई एम आई चेंजिंग द ऑर्डर, बिकॉज अदरवाइज वी विल हैव टू रीराइट एवरीथिंग लेटर। स्टार्टिंग में इस तरह सारी चैट्स को ज़रूर पढ़ें ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए, ओवरव्यू मिल जाए। बाद में तो आपको पता है, फिर चीज़ें बस बिल्ड करनी है, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट टैग एंड देन टेस्ट, फिर कॉपी, फिर पेस्ट, फिर टेस्ट। तो वो चीज़ें बात की है। अभी फ़िलहाल मैं इसको ज़्यादा अच्छे से रीड कर रहा हूँ। योर backend is already almost enterprise level. I want your frontend to match it, not just working. I want it to look like something between clean, premium and fast. These are the examples, and tomorrow's result, if we follow the plan, the homepage will eventually look something like this. होम पेज प्लान ये है, चलो ठीक है, इसको छोड़ो। with so here is where we will begin next. Step 1, build the global design, color, typography, spacing, reusable UI and component. Step 2 में क्या होगा, build the header and navigation completely. Only after those are solid will we start assembling the home page. This approach will save us from constantly rewriting components and will keep the project consistently from start to finish. अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ। देखें, हमारे पास ये एक हमारे पास स्क्रीन है, ये हमारा नैव बार है। थोड़ी सी ड्राइंग ख़राब है। अच्छा, ये नैव बार है, ये हमारे पास अनाउंसमेंट, सॉरी, ये हमारे पास अनाउंसमेंट बार हो जाएगा, ये हमारे पास नैव बार हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास एक ये प्रोडक्ट होगी, एक ये प्रोडक्ट होगी, एक ये प्रोडक्ट होगी, एक ये और एक ये, इस तरह सेम ये प्रोडक्ट्स आएंगी। उसके बाद नीचे हमारे पास कुछ कैटेगरीज आ जाएंगी और उससे नीचे हमारे पास ये फुटर पार्ट आ जाएगा। कैटेगरीज, कैटेगरी 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 टीसी। एंड अब एक प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए हमें एक पूरा कोड लिखना पड़ता है। तो अब हम क्या करेंगे, एक तरीका ये हो सकता है कि हम इसका कोड लिखें, इसका कोड लिखें, फिर इसका एक कोड लिखें, इसका भी कोड लिखें, इसका भी कोड लिखें, इसका भी कोड लिखें, इसका भी कोड लिखें, या कॉपी पेस्ट करते जाएं और बीच में जो वैल्यूज़ वगैरह वो चेंज कर लें। और दूसरा एक तरीका ये हो सकता है कि हम अपने पास एक कार्ड बना लें, जो कि है हमारे पास प्रोडक्ट कार्ड। ठीक है, जब हमें यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड करनी है तो हम बस उस प्रोडक्ट कार्ड को कॉल करें और वो यहाँ पे हमारे पास रिसीव हो जाए। इसके लिए हम बार बार इसका कोड नहीं लिखेंगे, बल्कि हम एक अपने पास प्रोडक्ट कार्ड बना लेंगे और उसी को कॉल करते जाएंगे और वो हमारे पास आता जाएगा। सेम फॉर द कैटेगरी, हम यहाँ पे अपने पास एक कैटेगरी कार्ड बना लेंगे और उसको यहाँ पे कॉल करेंगे और वो यहाँ पे अप टू सोन हमें कैटेगरीज देता जाएगा। एक बार कॉल किया, एक कैटेगरी आ गई, दूसरी बार किया, दूसरी आ गई, एंड अप टू सोन हमारे पास जैसे कि फीचर्ड प्रोडक्ट्स हैं, उसमें हम कुछ प्रोडक्ट्स को फीचर कर देंगे, उसकी वैल्यू में हम इस फीचर्ड को ट्रू करेंगे और यहाँ पे हमारे पास जो फीचर्ड लिस्ट होगी वहाँ पे वो आ जाएंगी। ठीक है, फॉर नाउ लेट्स मूव let's move forward. Then let's get started. I understand each and everything perfectly.
create global theme inside src। तो भाई थोड़ी देर के लिए ज़रा जाएंगे इधर से। src में हमारे पास थीम है। थीम में हमारे पास आएगा colors.js, colors.js, typography.js, theme.js। ठीक है, colors.js। अभी यहाँ पे मैं एक मतलब रीनेम करके नाम इसका क्या बोलते हैं उसको वो कर लेता हूँ। अच्छा मेरा ना ध्यान इधर है और ज़ुबान इधर है, तो जस्ट लाइक फॉर नाउ ज़ुबान अटक रही है। अच्छा नाम इसका मैंने वेरीफाई कर लिया। अब src में index.css है। डिलीट एवरीथिंग एंड import url this sorry save install fonts no, they are loaded automatically from Google Fonts through the import the css import। wait a minute, हाँ ठीक है, ये यहाँ से इम्पोर्ट हो जाएंगे। थीम प्रीव्यू ठीक है, कुछ थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ा है। now have a permanent identity, primary, dark red, gold, background white, typography ये पोपिन्स, इंटर और सिंजल, ये कुछ हमारे पास जो है ना वो फॉन्ट्स उनके नाम है। दिस इज़ अ प्रीमियम फैशन पैलेट दैट सूट crafties very well। Stop here after completing these steps। once you have done them, we'll build the first reusable UI components: button, loader, section title, product card or category card। These components will be reused across the entire application। Done। Fantastic, we are officially starting to build the real front end now। Your project now has a proper design foundation, which means when we build from here will look consistent। phase 1.1 build UI library। instead of jumping straight to the header, we are first creating the reusable UI component। exactly how professional। ओके अब हमारे पास यहाँ पे UI कंपोनेंट्स कौन से हैं। कंपोनेंट्स में UI में button.jsx, हमारे बटन्स कुछ इस तरह से दिखेंगे, प्यारे प्यारे से। हमारे पास हमारा जो लोडर होगा, लोडर मीन्स जब हम कोई फाइल या कोई पेज लोड कर रहे होते हैं index.css में, हमने यहाँ पे एंड पे ये ऐड करना है। नेक्स्ट हमारे पास टाइटल .jsx, सेक्शन टाइटल बेसिकली। शिट गलत चीज़ कॉपी करके पेस्ट कर दी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट कार्ड।
भी हमारे पास है कैटेगरी कार्ड। The first major visual part of application and will stay with us for the rest of the project. हाँ, इसमें भी यहाँ पे हमारे पास कुछ इनलाइन स्टाइलिंग्स हैं जो कि हमने नहीं करनी थी। दिस इज़ नॉट फेयर बाय द वे, ये कुछ गलत हो गया है। नेक्स्ट स्टेप, बिल्ड द हेडर वर्जन। The version is much cleaner and easier to maintain. Build the header real version. We are now going to build the most important part of the website, final header feature, top bar यानी top announcement bar, logo, search, wishlist, cart, account, theme, and then home, women, men, kids, sale, bespoke, contact. इसमें हम फर्दर इसको चेंज कर सकते हैं and it will support responsive this and that. Before writing the header, I want to organize the layout component properly and structure is now good. Component में layout में keep the structure for the entire project. Today's goal will build these in order. Header.jsx snapbar, use only one logo location for React projects. It's cleaner. Assets images for example. ठीक है, I am going with keep your logo here. If a png, that's fine too. Import we will import it directly into React components. What will I achieve next? Let's move forward. Perfect using is exactly what I would for a professional project. We will use another again. Step 1, build the header. उसके लिए स्टेप 1 क्या है, लेआउट में हमारे पास header.jsx की फाइल होगी। किधर है ये, इसको इस सारे के साथ रिप्लेस कर देंगे। फाइनली बहुत अच्छा हुआ, बेसिकली बहुत बुरा हुआ। एक मिनट, कहीं मैं गलत जगह पे तो नहीं कर रहा। SRC
कंपोनेंट्स में हमारे पास लेआउट है, लेआउट में हमारे पास हेडर डॉट JSX है, ठीक है। रिप्लेस एवरीथिंग विद दिस, ऑल, पेस्ट एंड सेव। अब यहाँ पे एरर क्या दे रहा है हमारे पास, ठीक है, फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं, कौन सी, navbar डॉट JSX, यस इट एग्जिस्ट, कहाँ पे, SRC कंपोनेंट लेआउट में navbar डॉट JSX है। चलो इसको कंप्लीट करके देखते हैं। header डॉट JSX, अब यहाँ हमारे पास आएगा SRC कंपोनेंट्स, होम में अनाउंसमेंट बार डॉट JSX, ऑल, पेस्ट एंड सेव। स्टेप 3, components, layout, navbar dot JSX, all, paste and save. Oh, finally, now it is looking something beautiful. navbar भी आ गया। step 4, should see, I run it, I want reinstall tailwind changes because the code I just wrote used tailwind. Reply with done, and how can I check did installed tailwind or not। अब ये tailwind कैसे चेक होगा, मेथड वन रिकमेंडेड, ओपन योर फ्रंट एंड में आपके पास होगा आपका पैकेज डॉट जेसन, ओपन योर डिपेंडेंसीज, यहाँ मेथड टू check if these files exist। ठीक है, मैं इसको ना ये फाइल कोड ही दे देता हूँ, my json and white dot config dot js, I'll copy paste। और इसके अलावा मेथड टू cmd बताया था इसने, यहाँ पे मैं cmd रन करता हूँ, npm list tailwind css, and here is my cmd output। अब क्योंकि मैं इसको फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ तो थोड़ा सा डर लग रहा है और बड़े मैं आराम से ध्यान से कर रहा हूँ। ऑन दी अदर हैंड जब मैंने बैक एंड किया वो मैंने बड़ा फास्ट किया था, तो ठीक है। अभी फ़िलहाल चलते हैं अभी नेक्स्ट पे, नेक्स्ट SRC में, रुको ज़रा यार, SRC में index डॉट CSS में at the very top add this, at the very top add this and then save। now it looks pretty good। this line is what actually enabled tailwind, without that import classes would not work। one more thing I noticed, your project is using React
that's perfectly fine, but I will make sure every example I give you compatible with the v7. You will not copy older v6 tutorials that might cause subtle issues. Next lesson, we are not learning, my dear, we are implementing and creating the real world project. क्या बंदा है यार. अच्छा, फॉर नाउ लेट मी शो यू समथिंग. इसका क्या मतलब है. अभी यहाँ पे हमारे पास CSS अप्लाइड नहीं थी, और आफ्टर अप्लाइंग द CSS वी गॉट दिस आउटपुट. यार बस कितना प्यारा, ये आ गया, ये आ गया, कार्ट आ गया, सर्च बार, फ्रेम्स सर्च कर सकते हैं, एंड अप टू सो ऑन. ये अभी फ़िलहाल बजे ना, बस जल्दी जल्दी डन करते हैं. आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट वन, क्योंकि इसमें हमारे पास अनाउंसमेंट बार बनेगा, लोगो यूज़ हो रहा है ऑलरेडी, पता नहीं और क्या है इसका. सर्च बार, विश लिस्ट, कार्ट, यूज़र मेन्यू, डार्क मोड, लाइट मोड और रिस्पॉन्सिव मोबाइल, ये सारा कुछ होगा. अभी बस चलते हैं इसके लिए जल्दी जल्दी. रिप्लेस एवरीथिंग विद दिस. हमें क्या ढूंढना है. SRC कंपोनेंट लेआउट, कंपोनेंट लेआउट, इसमें navbar.jsx, navbar.jsx, इस सारे को इसके साथ रिप्लेस कर देना. इसमें वो किधर चला गया, सर्च बार. अच्छा अभी कंप्लीट तो हो लेना था, डर क्यों रहे हो. अच्छा, आई एम लिटरली वेरी एक्साइटेड. मेरे व्हाट्सएप पर तो चल ही रहा होगा. लेआउट में header.jsx और पेस्ट एंड सेव. ठीक है. अनाउंसमेंट बार में कंपोनेंट होम, अनाउंसमेंट बार, फुटर में हमारे पास लेआउट, footer.jsx. भी ये कैसा है, नॉर्मल सा है. ठीक है, अभी थोड़ा प्यारा लग रहा है. होम पेज, और नाउ टेम्परेरी प्लेस्ड विद दिस. होम पेज हमारा कहाँ पे है, पेजेस में होगा डेफिनेटली. होम पेज डॉट jsx, एक्सपोर्ट. ओह शिट 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 शिट, ये क्या हो गया. एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन होम पेज, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज. ये क्या है, इसको सारी फाइल के साथ ही रिप्लेस करते हैं. हाँ ठीक 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 ठीक, मैंने थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल कर दिया था. हाँ, वी शुड लुक समथिंग लाइक दिस. अभी ये बटन्स क्लिकेबल हो चुके हैं. वो होम, वुमेन, मैन, किड्स, सेल, bespoke, कॉन्टैक्ट. यहाँ पे हम अपनी कैटेगरीज को रख सकते हैं. ठीक है. बिफोर मूविंग टू हीरो सेक्शन, इसको बंद कर लेते हैं. when you have pasted everything and done npm, send me the screenshot of your home page. I want to visually inspect the header before we continue. It's much easier to fix spacing, logo size और अलाइनमेंट. ठीक है, इसको मैं इसका स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ. जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट राइट देयर. अब ये चीज़ मैंने कैसे की है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ. विंडोज़
प्रेस योर विंडोज़ शिफ्ट एंड एस, जिसका स्क्रीनशॉट चाहिए वो लिया, यहाँ पर नोटिफिकेशन, इसको ओपन किया, ये कॉपी का बटन है, कॉपी किया तो ये जो पिक्चर है आपके क्लिपबोर्ड पे कॉपी हो जाएगी। इसको मैं डन नहीं कहता हूँ। ठीक है, ग्लोबल डिज़ाइन सिस्टम, एवरी सेक्शन विल बी रिस्पॉन्सिव। हाँ, मैं देखूँ ज़रा ये रिस्पॉन्सिव है कि नहीं। फॉर नाउ नॉट अ लॉट बट अ लिटिल बिट। ठीक है, अप टू सोन एंड तक चलते चलते हो ही जाएगा। Now our first real task will create the global theme. This control the whole website will make. I already have a complete luxury color palette prepared for crafties. It is designed specially for a premium Pakistani fashion brand. It supports light mode, dark mode, and luxury maroon Asians and give background done. And one thing that I want to tell you, it is not a web that I am creating for. One thing I noticed, you think जी बाबू जी, I am knitting it for my clothing brand, but I want to tell you it is not knitting for clothing brand. It is something. It is a platform where I am going to sell the niche of decoration and some other like that. Thank you for correcting me. That's an important distinction, and it will change several design decision going forward. I had modern e-commerce from home decor, decorative item, gift, handcrafted products instead of like home decor, wall art, candle. For now, I have not finalized all of my TEDs, but there are some car frame like 3D, 3D, deep 3D, and wooden 3D, bespoke
this and may added more beauty. You also printed shirts and 3D printed frames. ठीक है, अभी इसको मैंने फिर से डिस्ट्रैक्ट किया है थोड़ा सा। होम प्रोडक्ट कैटेगरी bespoke न्यू अराइवल, ठीक है। फ्रेम्स तो ठीक है, फिर अभी जो है मुझे जाना होगा। अभी के लिए हमारा जो आउटपुट है वो प्यारा सा निकल के ये आया है एंड ये आई थिंक काफ़ी रहेगा अभी के लिए, ठीक है ना। बाकी इसमें मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ यहाँ पे ये अभी ये देखो ना जी, ये लेफ़्ट साइड पे सारा हुआ है, इसको भी ठीक करना होगा। तो अभी अगर मैं इसको इंस्पेक्ट कर रहा हूँ ना और यहाँ पे भी ये पूरा मिडल में, अगर स्क्रीन साइज़ ये होगा तो ये प्यारा लगेगा। स्क्रीन साइज़ अभी बड़ा हुआ है, और बड़ा होगा तो और ज़्यादा मसला करेगा। ये छोटा होता जाएगा तो ये ठीक होता जाएगा, ज़्यादा छोटा होगा तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो जाएगा। सो इन चीज़ों को भी देखना है, करना है। एंड फॉर नाउ, अल्लाह हाफिज़।